अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ENG 101 इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन का ग्रैंड क्विज़। बट ग्रैंड क्विज़ शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, ग्रैंड क्विज़ और असाइनमेंट, आइडिया सॉल्यूशन के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच जाएँ। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ क्विज़। क्वेश्चन नंबर 1, yesterday after the party he dashed home. The answer is went. The answer is went. Next question is disk and tapes can be stored dash a library. आपके जो concepts हैं वो clear होने चाहिए, sentence build करने आने चाहिए. The answer is in a library. The answer is in. Next question is choose a noun in the given sentence. It will take all of your energy and you will be able to walk again. Noun क्या कहते हैं? Name, place और think को कहते हैं, तो energy. The next question is fill in the blanks with the most appropriate option. Closest test helps in developing the habit of dash reading. The answer is concentrated. The answer is concentrated. Next is this tower. Select the answer that best explains the metaphorical meaning of the given idiom. Given idiom है तो इसका जो meaning आएगा वो remote from everyday affairs, यानी आपको everyday life के affairs के बारे में कुछ नहीं पता होता with unknown person. नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कैन ईजीली डैश द इंफॉर्मेशन गिवन ड्यूरिंग अ लेक्चर. कहीं पर मैंने देखा फॉरगेट और कहीं पर इवेलुएट भी कर सकते हैं. मुझे लग रहा था या रिमेंबर होगा, इन तीनों में से आ सकता है फॉरगेट या इवेलुएट. कैन ईजीली आया है तो मे बी फॉरगेट हो या इवेलुएट हो, तो इसको कंफर्म कर लीजिएगा. Next question is use grammatical information to provide the word that correctly completes the following sentence. Sometimes oil dash to the surface to form torpedoes. Okay जी, ये ना रिसता रहता है. The answer is this, यानी आपका बहता रहता है, यानी ऑयल निकलता रहता है. The answer is this. Okay जी, next is tables, charts and maps etc are the dash which help you interpret visual data. The answer is ads. Okay जी, next question is complete the sentence by choosing the best option. The child spoke dash about her trip to Disneyland. The answer is energetically. The answer is this. Okay जी, next question is read the sentence carefully and decide which one from the given option is closest in meaning to the word in capital letters. Affluent write किया हुआ है, मैं पूरा नहीं पढ़ रही. Affluent का जो meaning है या synonym अगर आप search करें, the answer is prosperous. Next question is complete the given statement by choosing the best option. We were dashed through the park when we saw a squirrel walking. Walk कर रहे थे, वर आया है तो walked तो नहीं आएगा ना, walkness आएगा या walked होगा. We were walking. Next question is in simple words clause procedure means to fill in the deleted words, यानी missing जो words हैं उनको fill करना. Next question is fill in the blanks by selecting appropriate possessive pronoun from the list. Mary, is this your bike? No dash bike is in the backyard of the house. अगर मैं इसको over लेती तो over एक की बात हो रही थी तो over नहीं यूज़ कर सकती, there नहीं कर सकती, us नहीं कर सकती. बाकी जो बच गया था जो एक के लिए था वो था हर, तो मैंने इसको हर को यूज़ किया है. Next question is choose the correct option. We use the phrase dash when we went to express 100% ये certainty. तो वैसे 100% certainty की बात करूँ कि कोई शक नहीं है तो without a doubt, तो perhaps शायद होता है, could हो सकता है, most probably भी मेरे ख्याल में शायद कोई कहते हैं गालिबन कह दें, तो मीन्स ये बचा मेरे पास जो 100% के लिए होगा विदाउट अ डाउट. मैंने ये किया है, आप इसको कंफर्म करना चाहें तो कर सकते हैं. आइडेंटिफाई द इफेक्ट फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस. अंबर कुड नॉट सी द बोर्ड्स सो ही गॉट ग्लासेस. तो इफेक्ट क्या हुआ, उसे गॉट ग्लासेस मैंने तो ये लगाया था, आप देख लीजिएगा इसका करेक्ट आंसर. ये मैंने तो ये लगाया था, ये इफेक्ट बनता है शी गॉट ग्लासेस, यानी इफेक्ट ये हुआ. Complete the sentence by choosing the best option. We have enough spices for only one type of curry. We can cook dash chicken curry dash mutton curry. यानी हमारे पास सिर्फ एक टाइप की करी के लिए स्पाइसेस हैं, तो या तो इधर हम ये करी बना सकते हैं या फिर ये बना सकते हैं. द आंसर इज़ ईदर चिकन करी और मटन करी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ रीड द कॉज इन द सिचुएशन एंड चूज़ द अफेक्ट. हाँ, ये भी कंफर्म नहीं था. द चाइल्ड स्ट्रेच्ड अ बलून, पुट इट टू हिज लिप्स एंड
pursed his lips around the balloon's neck. तो इसका आंसर मैंने क्या लगाया था, चाइल्ड टू का डीप ब्रेथ आना है, तो इसको कंफर्म कीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है द नाउन फॉर्म ऑफ कम्पीट इज. कम्पीट की जो है वो कॉम्पिटिशन आता है. द आंसर इज कॉम्पिटिशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट द गिवन स्टेटमेंट बाय चूजिंग द बेस्ट ऑप्शन. वी चूज द डैश पम्पकिन. लार्जनेस भी नहीं होगा, लार्ज फुल भी नहीं होगा, लार्जली भी नहीं होगा. द आंसर इज लार्जेस्ट, लार्ज के साथ EST, लार्जेस्ट पम्पकिन. Next question is choose the correct option from the following. In drama, playwrights expect their audience to read between the lines of the. वैसे lines dialogues की होती हैं, इसलिए मैंने dialogues choose किया है. And use inference to depict the diversity of their characterization. माइम में लिखा हुआ था यानी नकल करने को, मोनोलॉग या डायलॉग्स, आप इसको देखिएगा. मैंने डायलॉग्स लगाया क्योंकि डायलॉग्स की लाइंस होती हैं. चूज़ द करेक्ट ऑप्शन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एंटोनिम ऑफ कंसीव. कंसीव के जो सिनोनिम्स हैं वो हैं इमेजिन, थिंक, सपोज. ये तीनों इसके सिनोनिम्स हैं. तो एंटोनिम बाकी बचा जो डिक्लेयर करना बचा. ओके, चूज़ द करेक्ट, ये तो हो गया हमारा. 22 है फिल इन द ब्लैंक बाय सेलेक्टिंग पास्ट प्रोग्रेसिव वर्ब फ्रॉम द गिवन चॉइसेस. व्हाइल दे वर डैश ही प्लेड द पियानो. क्या कर रहे थे वो, सिंगिंग कर रहे थे. संग, सैंग, सिंग नहीं आएगा, वर्ड आया है तो सिंगिंग. he played the piano. There is an exception dash any rule to any rule. The answer is to any rule. Next question is select the answer that best explains the metaphorical meaning of the given idiom to make a clean breast of. यानी बात करके अपना छुटकारा पा लेना. Do confess without of reverse, यानी बात करके फिर मुकरना ना. प्रेज वगैरह भी नहीं है, प्रेज भी नहीं है, ठीक है. वननेस कन्फेस कर लेना. नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट ऑप्शन. सिनोनिम स्विंडल. द आंसर इज चीट, चीट करना. नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द नाउन इन द गिवन सेंटेंस. द पर्पल ग्रेप्स आर डिलीशियस. नाउन नेम पर्सन और प्लेस को कहते हैं. तो यहाँ थिंग भी है, थिंग भी होती है, तो ग्रेप्स आर थिंग्स और नाउन. All like him immensely dash the fact that he is at times rather dishonest. The answer is regardless of the fact. The answer is regardless. What is the cause in the following sentence? The tree fell in the middle of the road because of the high wind. The cause बतानी है किस वजह से गिरा था. The reason is, cause is high wind. The answer is high wind. Choose the correct option. Do you have any dash sheet left? Codes तो नहीं आएगा, coded भी नहीं आएगा, code sheet भी नहीं होता, coding sheet. जब भी हम पूछते हैं किसी से तो coding sheet के बारे में पूछते हैं. The answer is coding. Next, the suffix in the words fatalism and methodism has the meaning. The answer is state, quality and action. The answer is this. अच्छा, इसका ये भी बिलीफ इन भी मैंने कहीं पढ़ा था, लेकिन मैंने कहीं पर शॉर्ट पेपर देखे, वहाँ पर ये राइट किया हुआ था. अगर देख लें, अगर किसी को पता है इसका तो वो बता देगा. ओके जी, सो वी हैव कंप्लीटेड आवर क्विज, ग्रैंड क्विज ऑफ ENG 101. आई होप आप लोगों की हेल्प हो जाएगी. बहुत सारा स्टोरेज है अगर आपके पास MCQs का, तो आप इजीली अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं. मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा. अपना ख्याल रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.